Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm going to discuss income tax slab for the financial year 2021-22. Let's see. Income tax slab for the financial year 2021-22. No change in income tax slab. सो दैट मीन्स जो हमारी 2020-21 की स्लैब है वही हमारी 2021-22 में रहने वाली है. Introduction. Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has announced several proposals for the benefit of depositors, investors, and taxpayers. She said that the tax system should put a minimum burden on the taxpayers. The Finance Minister surprised the taxpayers by not announcing any change in income tax slab rates. She had earlier promised to present a budget like no other. It was hoped that this year it will be a budget like no other for the taxpayers as well. The Finance Minister was expected to provide relief to the pandemic hit common man as well as focus more on driving economic recovery. No change in income tax slab. Budget 2021 has announced the same tax regime, giving the taxpayers an option to pay taxes as per the new tax slabs from financial 2021-22 onwards. सेम वे में जैसे हमने 2020-21 के अंदर किया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, सेम वे में हमारा 2021-22 में रहने वाला है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. There are two options for the CC to choose an income tax slab, option 1 and option 2. ऑप्शन 1 फॉर द इंडिविजुअल्स अप टू 60 years of age. तो हम देखते हैं ऑप्शन 1 के अंदर क्या है. इनकम अप टू ₹2.5 लाख तक. अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो नील, कोई टैक्स नहीं है. 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% टैक्स. 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स एंड अबव 10 लाख से तो 30% टैक्स. ऑप्शन 1 के अंदर ही फॉर इंडिविजुअल्स 60 years of age but less than 80 years. तो उस केस में इनकम अप टू 3 lakhs तक exempt, 3 to 5 lakhs 5%, 5 to 10 lakhs 20% and above 10 lakhs it's 30%. सेम वे में ऑप्शन 1 के अंदर फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स that are more than 80 years of age, उस केस में इनकम अप टू ₹5 lakhs exempt, 5 to 10 lakhs it's 20% and above 10 lakhs it's 30%. सरचार्ज. तो सरचार्ज हमारा क्या रहा था उस स्लैब में. अप टू ₹50 lakhs तक अगर हमारी इनकम है नो सरचार्ज. 50 लाख से 1 करोड़ अगर इनकम है तो 10% एंड इफ इट इज अबव 1 करोड़ तो 15% सरचार्ज. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. तो उस केस में रिबेट जो हमें मिल रही है वो क्या है, डेट इज अप टू ₹5 lakhs. तो रिबेट हमारी क्या है 12,500 मैक्सिमम. Health and education says 4%. Deductions, standard deduction 50,000. Chapter 6A की deductions that are also available. Option 1 के अंदर. Now come to the option 2. In case अगर हम option 2 को avail करते हैं तो उस केस में क्या है, for individuals up to 60 years of age. तो option 2 के अंदर आप देखोगे काफी ज्यादा slabs हैं. Income up to ₹2.50 lakhs exempt, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 to 7.5 lakhs 10%, 7.5 to 10 lakhs 15%, 10 to 12.50 lakhs 20%, 12.50 to 15 lakhs it's 25% and above 15 lakhs it's 30%. तो ऑप्शन 2 के अंदर हमारे जो स्लैब्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. तो इसको इजी वे क्या है इसको रिमाइंड करने का, इधर जो भी गैप दिया है इनकम के अंदर उन्होंने जो गैप दिया है डेट इज 2.5 lakhs का, और इधर जो इनकम टैक्स के अंदर जो उन्होंने गैप दिया वो दिया उन्होंने 5%. तो आप देखोगे 2.5 lakhs से आपकी ये जो स्लैब इंक्रीज हो रही है, टैक्स आपका 5% से इंक्रीज हो रहा है. तो इसी वे से आप इसको लर्न कर सकते हो. सरचार्ज अप टू ₹50 lakhs नो सरचार्ज. 50 lakhs से 1 करोड़ है तो 10% surcharge and if the income is above 1 crore तो 15% surcharge. Taxable income up to ₹5 lakhs. तो उस केस में रिबेट ऑप्शन 2 के अंदर भी रिबेट आपको क्या दी गई है 12,500 की मैक्सिमम रिबेट. Health and education says 4%. Standard deduction
no standard deduction in option 2. Chapter 6A deductions, no chapter 6A deductions in option 2, but you can avail only for the deduction under section 80 CCD2 and 80 JJA. बस 2 deductions आप ले सकते हैं उसके अंदर. Here is the list of exemptions and deductions data taxpayer will have to give up while choosing the option 2. अगर हम option 2 को अवेल करते हैं, उसके अंदर स्लैब रेट तो हमारी बहुत ज्यादा है जो हमने स्टडी किया. अगर हम उसका बेनिफिट लेते हैं तो उस केस में आपको ये वाली एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जो है वो छोड़नी पड़ेंगी. RTA, HRA, conveyance, daily expenses in the course of employment, relocation allowance, helper allowance, children education allowance, other special allowances, standard deduction, professional tax, interest on housing loan, चैप्टर 6 से डिडक्शंस. तो आपको ये सब छोड़ने पड़ेंगे एक्सेप्ट सेक्शन 80 CCD2 एंड 80 JJA. सिर्फ ये 2 आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको सारी की सारी जो डिडक्शंस और जो एग्जम्पशंस वो छोड़नी पड़ेंगी. कंपैरेटिव ऑफ बोथ दी स्लैब्स. तो मैंने क्या किया, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों को लेके इसका कंपैरिजन बना दिया. ठीक है, तो ये आप चार्ट यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो. अप टू ₹2.5 लाख दोनों केसेस में एग्जम्प्ट. 2.5 से 5 लाख इनकम है तो ऑप्शन 1 में 5%, ऑप्शन 2 में अगेन 5%. 5 to 7.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो ऑप्शन 1 में 20% टैक्स, ऑप्शन 2 में 10% है. 7.5 लाख से लेके अगर 10 लाख तक की इनकम है तो ऑप्शन 1 में 20%, ऑप्शन 2 में 15%. 10 to 12.5 लाख की अगर इनकम है ऑप्शन 1 में 30% टैक्स, ऑप्शन 2 में 20% टैक्स. 12.5 to 15 लाख की अगर इनकम है तो ऑप्शन 1 में 30%, ऑप्शन 2 में 25% टैक्स. अबव 15 लाख अगर इनकम है तो ऑप्शन 1 में 30%, ऑप्शन 2 में भी 30%. सरचार्ज दोनों केसेस में सेम है. 50 लाख तक नो सरचार्ज, 50 to 1 करोड़ तक की अगर इनकम है तो 10% सरचार्ज, एंड इफ द इनकम इज अबव 1 करोड़ तो 15% सरचार्ज. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. तो दोनों केसेस में इफ द टैक्सेबल इनकम इज अप टू ₹5 लाख तो दोनों केसेस में 12,500 की रिबेट है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोनों केसेस में 4%. तो ये कंपैरिजन इसलिए बना दिया गया है ताकि आपको अगर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का कंपैरिजन स्टडी करना है कि कौन से बेनिफिशियल है तो दोनों का कंपैरिजन में आप इसलिए उसको चेक कर सकते हैं. डिडक्शंस. ऑप्शन 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रही है 50,000 की, बट ऑप्शन 2 के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी. ऑप्शन 1 में आपको चैप्टर 6A की डिडक्शंस अवेलेबल है, बट ऑप्शन 2 में आपको चैप्टर 6A की डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है. सिर्फ आपको 2 डिडक्शंस अवेलेबल है, 80 CCD2 एंड 80 JJA. नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिलीफ इन फाइलिंग ITF फॉर सीनियर सिटीजन्स, जो उन्होंने नया हमें दिया इस बजट के अंदर. Our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, while presenting the budget 2021, has proposed no filing of ITR by the senior citizens who are above 75 years of age. ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने कंडीशंस के दी है, above 75 years of age and have only pension and interest income. अगर सीनियर सिटीजन्स की सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है तो उस केस में उन्होंने उसको ITR फाइल करने से एग्जम्प्ट किया है. अगर सीनियर सिटीजन की कोई और इनकम है, लेट अस सपोज कोई बिजनेस इनकम है या किसी और तरह की इनकम है, तो उस केस में उनको ITR फाइल करनी है. एंड दैट इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल 2021-22. तो ये 2021-22 से एप्लीकेबल है जिसमें उन्होंने उनको एग्जम्पशन दी है. नेक्स्ट, ITR filing made easy. Interest income, capital gains from securities to be pre-filled. अभी भी आप देखते हो कि जब हम ITR फाइल करते हैं तो काफी सारा डाटा हमारे पास जो है वो प्री-फिल्ड आता है. ठीक है, तो जो नया उन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास कुछ और भी डाटा जो है वो प्री-फिल्ड आएगा. तो वो क्या है, डेट इन ITR डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम लिस्ट सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स विल कम प्री-फिल्ड इन दी ITR. जैसे बैंक डिपॉजिट का तो अभी भी इंटरेस्ट आ ही रहा था, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड इनकम अभी नहीं आ रही थी प्री-फिल्ड. तो कुछ टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, सेसेस क्या करते हैं, उस इनकम को हाइड कर देते हैं, उसको शो ही नहीं करते ITR के अंदर. तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से क्या होगा, आपकी कैपिटल गेन्स की इनकम
इनकम फ्रॉम लिस्ट सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस से कोई इंटरेस्ट आया तो वो भी डेट विल ऑल्सो कम प्रीफिल्ड इन दी आईटीआर। तो जो चीज आपकी आईटीआर के अंदर प्रीफिल्ड आ गई तो उसका बेनिफिट तो ये है, जो तो टैक्स पे करते हैं उनके लिए तो बेनिफिट है कि वहां से सीधी सीधी इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गई, और जो टैक्स इवेडर्स है उनके लिए ये नुकसान है कि टैक्स आप इवेड नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अ गुड स्टेप, ये वाला अच्छा उन्होंने लिया। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.